કરું છું, વેઇટ. હા. Okay, you are live. Okay. Good afternoon, all the viewers. I am Dr. Chaitali Shah from Parul Institute of Physiotherapy. And today we have organized one webinar on the time and priority management. This webinar is organized with the help of our alumni, Snehal Dudat. Snehal Dudat is ex-student of the Parul Institute of Physiotherapy, and the webinar is conducted by Vijay sir. Vijay sir will tell us, or he will focus on the time and priority management. And Snehal will introduce Vijay sir. So over to you, Snehal. Snehal. Yes. Hello, Kinshal madam. Start program now. Okay. Hello friends, very good afternoon to all. I am JC Kinjal Shah from JCI Ankleshwar. Dear friends, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पारुल यूनिवर्सिटी के साथ, और हमारे आज के जो ट्रेनर है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, इनकी वेल नोन ट्रेनर है जेसी विजय सर, और वो आज हमको टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं. सो मैं आपको बेसिक जेसीआई क्या है उसके लिए दो चीज कहना चाहूंगी कि आप अगर हमें देख रहे हो, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हो, तो वो हमें मिलता है जेसीआई से. अगर आपको कुछ भी करना है या कहीं पे कोई भी एरिया की बात करनी है, तो सारी कनेक्ट होती है जेसीआई से, जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है. यहाँ पे हम सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिटी वर्क, पब्लिक रिलेशंस और सारी अलग अलग तरह की प्रोग्राम्स करते हैं, और यूथ, जो आज का यूथ है उसको एम्पावर करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, अगर चाहते हो अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ डेवलप होना, तो जेसीआई में जरूर ज्वाइन होना. जेसीआई अंकलेश्वर ने और पारुल यूनिवर्सिटी ने इंस्टीट्यूट ने मिलके ये कुछ अलग से नया पहली बार ट्राई किया है, जिसमें हमारे ट्रेनर विजय सर आपको सिखाएंगे टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट. नाउ ओवर टू स्नेहल मैडम. Hello, good afternoon everyone. Welcome all of you to join us. Myself, JC Snehal Dudat, heartily welcomes you all. Chaitali ma'am, Navjot sir, thank you very much to give us this opportunity. I am one of alumni of Parul Institute of Physiotherapy. Our batch is second batch of this stream, and I passed out in 2009. Now I settled in Ankleshwar and joined Junior Chamber International Club called JCI in 2016. Through this chapter, I learned many skills like public speaking, management, as well as have personal development opportunities and get the chance to give back to our community and effect positive changes. I am happy and privileged to introduce our today's faculty. He has conducted more than 300 trainings and transformed lives of more than 10,000 students. He is certified trainer from international NGO called JCI. He is also design thinking and creativity expert and conducted more than 10 workshops of engineering students. He is also author of motivational book titled Life is for Us, Not for Others, which will be published soon and will transform millions of lives. His fingerprint training of goal setting and time management is highly impactful of students. He is also mind power trainer. He has completed his master degree in mechanical engineering in 2014. He was professor since last 5 years and made more than 1,000 students a mechanical engineer from different engineering colleges across Gujarat. Right now, he is working as marketing manager and makes students aware about these technologies all over Gujarat. Now I introduce young and dynamic personality JC Vijayabhai Parmar sir. Welcome you, sir, and now floor is yours. Thank you, madam. So, before start this session, yeah, am I audible? Yes, sir.
Yeah. Okay. So, good afternoon, all of you. So, before start this session, let me thank you all of the different hierarchy from the Parul University, starting from the Devanshu sir and Parul madam, and the dean and the principal of the physiotherapy, Parul Institute of Physiotherapy, that is Navjot sir, Associate Professor Chaitali madam, and also I must thanks to JCI family, JCI Ankleshwar family, who have given this opportunity to me to present this seminar on time and priority management. So before starting this session, I welcome all the new and existing students of Parul University. So today we are going to talk, as you know, time and priority management. Okay, so 1 minute, let me, yeah. So time and priority management, that is the one thing or one topic which is applicable to all. आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप कहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आपको ये जरूरी है टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट. ओके, और आज हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक के ऊपर विथ सम एग्जांपल्स, स्टोरीज एंड टूल्स एंड टेक्निक्स. मैं आज जो एग्जांपल्स आपको शेयर करने वाला हूँ वो रियल एग्जांपल होंगे. जो स्टोरीज बताने वाला हूँ, जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, वो 100% एफिशिएंट है. वो मैंने खुद से अपनी लाइफ में मैंने वो अप्लाई किया है, रिजल्ट मिला है, उसके बाद ही मैं आपको ये सब आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. ओके, सो जैसे टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीज है, तो वी विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट. तो सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. ये फॉर्मूला है WWHW फॉर्मूला. अब ये WWHW फॉर्मूला आप गूगल पे डालोगे, कहां पे भी डालोगे, आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला मैंने खुद से बनाया है और मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने जितने भी लोगों से मिला हूं, वो सब लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं एक फॉर्मूला पे आया हूं, और वो फॉर्मूला को मैंने नाम दिया है WWHW फॉर्मूला. अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट के लिए आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा. ऑटोमेटिकली आपका डेली रूटीन ऐसा हो जाएगा कि आप टाइम एज वेल एज प्रायोरिटी दोनों आपका मैनेज हो जाएगा. तो अभी हम जानते हैं कि ये WWHW फॉर्मूला क्या है. जी दोस्तों, ये फॉर्मूला के बाद में आपको एक लाइव स्टोरी के साथ आपको कनेक्ट करूंगा, और वो ये स्टोरी उनके ऊपर है जो अभी भी यहाँ पे लाइव सेशन में वो अटेंड कर रहे हैं. मैं ऐसी एक पर्सनालिटी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, और जिसका मैंने उनको देखते हुए पिछले 10 सालों से उनको मैं देख रहा हूँ, और उनको देखते देखते मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट का ये WWHW फॉर्मूला डिजाइन किया है. और मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज सर आप अटेंड कीजिएगा ये सेमिनार, बिकॉज मैं आपका एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ. तो ये WWHW फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले W है टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट के लिए. तो सबसे पहले W है क्लियर योर व्हाट. यस दोस्तों, क्लियर योर व्हाट मतलब आपको क्या चाहिए. आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका व्हाट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए. अगर आपका व्हाट क्लियर नहीं है ना, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको कौन कौन से काम करने हैं. तो सबसे पहला W है यहाँ पे व्हाट, कि आपका पहले व्हाट क्लियर होना चाहिए. एज ए स्टूडेंट अभी आपका व्हाट क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर में टॉप करना है, फाइनल ईयर में टॉप करना है, अपना 4 साल के बाद 5 साल के बाद खुद का हॉस्पिटल शुरू करना है. ये है आपका व्हाट. ओके, तो सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए व्हाट. तो व्हाट मींस कि आपको क्या चाहिए. सेकंड पॉइंट जो दूसरा W है, वो W है क्लियर योर व्हाई. व्हाट आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि व्हाई क्यों चाहिए. आपने व्हाट अपना डिजाइन कर लिया कि मुझे टॉप करना है, बट क्यों करना है दोस्त? टॉप इसलिए करना है कि अगर मैं पारुल यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा या टॉप करूंगी, तो मेरा पोस्टर हर एक वॉल पे दिखा जाएगा.
कल जाके बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं और बहुत सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स से 1000+ स्टूडेंट्स से वहां पे सब लोग मेरा चेहरा देखेंगे। एक वो प्राइड है जो सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है कि हम जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे अपना नाम हो, हमारा फोटोग्राफ्स हो। तो ये अपना वाई अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट करता है कि मुझे टॉप इसलिए करना है क्योंकि मेरी सोसाइटी में मेरी इज्जत बढ़े, मेरी कॉलेज में मेरी इज्जत बढ़े, जहां पे भी मैं जाऊं लोग मुझे अप्रिसिएट करें। तो आपका वाई आपकी फीलिंग से कनेक्ट करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और व्हाट और वाई आपका क्लियर हो गया ना, 90% काम आपका कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले व्हाट, सेकंड वाई। वाई अगर क्लियर नहीं है ना तो व्हाट भले ही क्लियर हो गया, आप नहीं करोगे वो काम। आपने एक रोबोट बना दिया बट रोबोट के अंदर चिप नहीं डाला ना, अगर वो चिप डालो तो वो आपका व्हाट है, वो रोबोट बनाए वो आपका व्हाट, सॉरी, वो चिप डाला वो वाई है और रोबोट जो अपना बनाया वो व्हाट है। तो वाई आपकी फीलिंग से कनेक्ट करता है। एक बार फीलिंग उसके साथ व्हाट के साथ कनेक्ट हो गई ना और वाई क्लियर हो गया, ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा रियल स्टोरी के साथ। तीसरा, व्हाट एंड वाई क्लियर हुआ। तीसरा आपको क्लियर करना है हाउ। आपने व्हाट क्लियर कर लिया, आपको क्या चाहिए, वाई के साथ कनेक्ट कर लिया कि आपको क्यों चाहिए। ओके, अभी हाउ मतलब कैसे करोगे वो। आपके पास प्लानिंग तो होना चाहिए ना। फर्स्ट ईयर में मुझे टॉप करना है, फाइनल ईयर में मुझे टॉप करना है, या मुझे हॉस्पिटल बनानी है, तो मुझे कैसे बनानी है, कैसे मुझे टॉप आना है। अगर मैं नॉर्मल रूटीन फॉलो करूंगा तो मैं नॉर्मल रिजल्ट ही लाऊंगा, पर अगर मेरा फोटो वॉल पे आना चाहिए तो वॉल पे आने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहिए। 15,000 अगर स्टूडेंट्स है पारुल के अंदर और 15,000 स्टूडेंट्स में से अगर एक स्टूडेंट को अपना फोटोग्राफ पारुल यूनिवर्सिटी में चाहिए तो क्या करना होगा, कुछ तो अलग करना होगा ना। अभी अभी का जो आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अगर वही रूटीन आपने अभी तक फॉलो किया है और वही फ्यूचर में फॉलो कर रहे हैं तो आपका फोटोग्राफ नहीं आएगा। तो आपके पास एक पर्टिकुलर प्लानिंग होना चाहिए कि आप कैसे उसको अचीव करोगे। ओके, तो आपका हाउ क्लियर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट लास्ट जो आपका है व्हेन। जी हाँ दोस्तों, टॉप करना है, फर्स्ट ईयर में टॉप करना है, आपका व्हाट क्लियर है, व्हाई प्राइड चाहिए, हाउ मेहनत करना है, व्हेन 1 साल में करना है, फर्स्ट ईयर में 2 साल में फर्स्ट ईयर क्लियर करना है, 3 साल में फर्स्ट ईयर क्लियर करना है, 4th ईयर में करना है। कब करना है फर्स्ट ईयर क्लियर, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो बार बार भी हो सकता है ना, जो हम नहीं चाहते हैं, है ना। बार बार फेल हो जाओ, एक्सपीरियंस लो, फिर बाद में 4 साल के बाद आप टॉप कर दो, ऐसा तो है नहीं ना। तो आपका व्हेन क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने 2020 में एडमिशन लिया है तो 2021 में मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर होगा और वही फर्स्ट ईयर में मुझे टॉप करना है। या तो अगर 2020 में एडमिशन लिया है तो 2024 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो वो ग्रेजुएशन में मेरा टॉप होना चाहिए, या तो 2025 में मेरा खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये आपका व्हेन क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका ये चारों चार क्लियर है ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपका कभी भी टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। आपको देखने की जरूरत ही नहीं होगी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए ना अपने काम के अंदर कि आपको आजू बाजू की चीजें दिखेगी ही नहीं। आप फुल्ली फोकस्ड रहोगे अपने काम के ऊपर। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा जो रियल एग्जांपल है, और वो पर्सनालिटी आपके जो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वहां पे वो पर्सनालिटी भी मौजूद है, जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा बाद में। 2011-12 की बात है, 2012 की बात है, 11 और 12 की बात करूंगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने उसको इनवाइट भी किया है यहाँ पे। बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों ने साथ में बीटेक कंप्लीट किया। बट उस वो कुछ अलग ही पर्सनालिटी है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ अलग करने का बहुत मजा आता है, आगे काम करने का, कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम करने का उसको बहुत मजा आता है, और उसका पैशन ही समझ लो ये सब। 2011 में, और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था उसका, फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। 2011 में उसने बीटेक पास किया। बीटेक पास किया, वैसे ही उसको मेरे साथ ही था, उसने जॉब भी मेरे साथ की है। लेक्चरर की जॉब उसने शुरू की, लेक्चरर की जॉब शुरू की और सैलरी भी उसको मिली। बट जब बीटेक होता है ना तब उनके आगे लिखा जाता है लेक्चरर। ओके, तो सबसे पहला व्हाट, उसने अपना व्हाट क्लियर किया।
उसने व्हाट क्या क्लियर किया, तो दो चीज उसने वहां पे व्हाट उसने अपना क्लियर किया कि सबसे पहला कि आज जो मेरे नाम के आगे लेक्चरर लिखा जा रहा है वो लेक्चरर को हटाना है और उसको प्रोफेसर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर लाना है। सेकंड व्हाट उसने क्लियर किया है कि आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, मुझे अपनी सैलरी डबल करनी है। तो उसका दो व्हाट क्लियर था, एक तो कि प्रोफेसर बनना है, सेकेंड तो कि सैलरी डबल करना है। तो फर्स्ट थिंग दैट कि उसका व्हाट क्लियर होगा। अभी वाई, उसका वाई क्लियर करना था। मैंने बताया कि उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं था, उसको अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो सुधारनी थी, उसको कैसे भी करके फाइनेंशियल उसको आगे आना था, फाइनेंशियल फ्रीडम उसको चाहिए थी। तो उसने अपना बचपन बिताया है फाइनेंशियल बैड कंडीशन में, उसको वो सुधारना था। तो मतलब उसका वाई क्लियर था कि जो फाइनेंशियली बैड कंडीशन है उसको रिमूव करना है, और जो रिस्पेक्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनते हो या प्रोफेसर बनते हो तो वो कुछ रिस्पेक्ट अलग हो जाती है। तो एक रिस्पेक्ट मतलब उसका वाई भी क्लियर था। तो फर्स्ट व्हाट एंड वाई उसने सबसे पहले क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ। तो हाउ उसका क्लियर करना था। हाउ पहले तो क्लियर कर लिया कि प्रोफेसर बनना है, सैलरी डबल चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन हाउ भी क्लियर कर लिया, सॉरी वाई भी क्लियर कर लिया। अब हाउ कैसे? तो उसका बीटेक था, उसको बीटेक से एमटेक करेगा, वो एमटेक कंप्लीट करेगा तभी जाके उसको असिस्टेंट प्रोफेसर या तो प्रोफेसर की पदवी मिलेगी, वरना तो वो लेक्चरर होके ही आगे जाएगा। अगर वो एमटेक कंप्लीट करता है और एमटेक कंप्लीट करने के बाद वो कॉलेज में जॉब करते हैं तो उसका सैलरी भी शायद डबल हो जाएगा। तो उसने हाउ के अंदर वो डिसाइड कर दिया कि अगर मुझे ये सब मेरा व्हाट और वाई मुझे क्लियर करना है तो मेरा हाउ यहाँ पे क्लियर है कि मुझे एमटेक करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और सबसे बेस्ट कि मुझे रिजल्ट भी अच्छा लाना होगा। तो अगर ये तीन चीजें अगर मैं कर लेता हूँ, उसने हाउ में ये तीन चीजें लिख दी कि मैकेनिकल, हार्ड वर्क, एमटेक हार्ड वर्क एज वेल एज अच्छा रिजल्ट, ये उसका हाउ क्लियर हो गया। अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और फोर्थ उसका था व्हेन। तो व्हेन मतलब उसने समझाया कि व्हेन कब मुझे कंप्लीट करना है। तो 2012 एक साल उसने जॉब किया है, 2012 में अगर वो एमटेक करने के लिए जाता है तो 2014 और एक साल की जॉब मतलब 2015 तक उसको फाइनेंशियल एटलीस्ट थोड़ा रिलीज होना था। तो उसका व्हेन क्लियर था कि 2015 तक आज की जो मेरी कंडीशन है वो कंडीशन 2015 में नहीं होनी चाहिए। तो उसका व्हेन भी यहाँ पे क्लियर था। अभी जो मैं दोस्त की बात कर रहा हूं ना वो बिलोंग करता है गोधरा से, एंड गोधरा इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम वडोदरा। 2012 में उसने एडमिशन लिया एमटेक में भरूच में, ओके। और गोधरा से भरूच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। यहाँ से बड़ौदा से गोधरा 80 किलोमीटर एंड बड़ौदा से भरूच 70 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर। उसका एडमिशन तो हो गया 150 किलोमीटर अवे एक कॉलेज के अंदर। अभी बड़ी दिक्कत ये आई कि उसने देखा कि 150 किलोमीटर अगर मुझे हर रोज वहां पे जाना है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, तो पहला एक ऑप्शन था कि वो वहां पे जाएगा और रहेगा। ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक उसका ये भी ड्रीम था कि मैं अगर एमटेक करूंगा तो खुद के पैसों से करूंगा, मुझे किसी से भी, पेरेंट्स से एक भी रुपया लेना नहीं है, किसी फ्रेंड से भी एक भी रुपया उधार नहीं लेना है। ओके, तो ये सब उसका क्लियर था कि खुद के पैसों से ही करना है, तो कैसे करेगा। तो एमटेक में एडमिशन तो मिल गया, बट वो कॉलेज थी 150 किलोमीटर अवे। अब क्या करना है? तो अब उसने डिसाइड किया कि हाउ कैसे करेगा। तो उसने देखा अलग अलग ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन, अगर मैं बस में अप डाउन करता हूं तो बस में अप डाउन कर रहा हूं 3.5 घंटा जाने का, 3.5 घंटा आने का, मतलब 7 आवर्स जर्नी। 7 आवर्स जर्नी, 8 आवर्स उसका कॉलेज, मतलब 15 आवर्स उसका ऐसा हो जाएगा। फिर घर पे आएगा, खाना वाना खाएगा, 1-1.5 घंटा वहां पे चला गया, तो रहा 8 घंटा सोने का। तो बाकी की चीज कब करेगा? तो एक ये पॉसिबिलिटी थी, वहां पे उसने क्रॉस लगा दिया। वहां पे रहना भी नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे रहेगा तो बहुत सारा खर्चा होगा, वो उठा नहीं सकता था। क्योंकि जो कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था उसकी फर्स्ट ईयर की फीस थी 70,000, सेकेंड ईयर की फीस थी 70,000। तो कैसे कैसे करके 35,000 फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तो उसने मैनेज कर ली, बट जो सेकंड सेमेस्टर की 35,000 फीस पे करनी थी वो कैसे मैनेज करेगा? और पैसे तो लेने नहीं है उसके कहां से भी। तो ये सब उसका क्लियर था। ओके, तो उसने एक और ऑप्शन ढूंढ के निकाला कि और कोई पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेन में अप डाउन कर सकता है।
तो उसने ढूंढ निकाला कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेन है जो भरूच तक जाती है। तो उसने फाइंड किया कि सुबह 5 बजे एक ट्रेन आती है जो यहाँ से बड़ौदा तक ड्रॉप करेगी, और बड़ौदा से आधे घंटे के बाद, एक ड्रॉप लेने के बाद आधे घंटे के बाद एक ट्रेन जाएगी 7 बजे जो भरूच को 8 बजे उतारेगी उसको। तो ये उसने टाइम टेबल मैनेज कर लिया कि 5 बजे की ट्रेन उसको वहां से गोधरा से मिलेगी, 5:30 बजे वो 6:30 बजे वो बड़ौदा उतरेगा, 7 बजे की उसको बड़ौदा से ट्रेन मिलेगी, 8 बजे वो भरूच पहुंचेगा और कॉलेज उसका 8:30 बजे ओपन होता है। तो एक जाने का क्लियर हो गया। आने का 4 बजे कॉलेज उसकी खत्म होती थी, 4:30 बजे की उसकी ट्रेन थी, तो 4:30 बजे अगर वो बैठता है तो वो ट्रेन डायरेक्ट उसको गोधरा उतारती थी, तो 6:30 बजे वो गोधरा उतर जाएगा। ओके, तो ये उसका एक टाइम टेबल सेट हो गया कि अगर 5 बजे वो उठ जाता है तो 6:30 बजे वो एटलीस्ट घर पे पहुंच जाएगा। पर सेकंड चीज थी कि वो फाइनेंशियल कैसे मैनेज करेगा। अभी जब वो पढ़ा रहा था ना, तो पढ़ाने में बहुत अच्छा था, और उसके यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स भी आते थे पढ़ने के लिए पर्सनली। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने क्लासेस शुरू कर दूं। तो उसने अपने पास जो 10-15,000 जो सेविंग थे, वो सेविंग का यूज करके एक रिस्क लेके उसने अपने ही नाम से क्लासेस शुरू कर दिया, और क्लासेस की एड पूरे गोधरा सिटी में उसने दे दी। और जैसे ही गोधरा सिटी में क्लासेस की एड दे दी, सबको पता चला, सब स्टूडेंट्स को पता चला, धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, और धीरे धीरे करके उसके पास 100 स्टूडेंट्स हो गए। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आने के बाद उसने सोचा कि इतने सारे स्टूडेंट को मैं अकेला तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसको 5 बजे जाना है, 6:30 बजे आना है, तो 6:30 बजे के बाद वो क्लास कितना लेगा। और सब अलग अलग सब्जेक्ट, सब अलग अलग ब्रांचेस से सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो सब पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या किया, रेंट पे 4 रूम ले लिए, 8-10 प्रोफेसर को हायर कर लिया। ओके, और ट्यूशन पे उन्होंने लगा लिया सिर्फ मैनेज करना, और 2-3 जो मेन उसके सब्जेक्ट है वही लेने का। अब उसने पूरा टाइम टेबल सेट किया, कैसे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे की ट्रेन पकड़ना है, 8 बजे कॉलेज पहुंचना है, 8 से 4 कॉलेज, 4:30 बजे की ट्रेन पकड़ना है, गोधरा 6:30 बजे आना है, 6:30 बजे आने के बाद डायरेक्टली घर पे जाना नहीं है, पहले क्लासेस पे जाना है, क्लासेस में 2-3 घंटा क्लासेस लेने हैं, एक दिन 2 घंटा, एक दिन 3 घंटा, 9 साढ़े 9 बजे उसके क्लासेस खत्म होते थे, उसके बाद वो घर पे जाता था। ये है टाइम मैनेजमेंट। क्यों ये टाइम मैनेजमेंट हुआ? क्योंकि उसका व्हाट एंड व्हाई क्लियर था, और हाउ उसने मैनेज करके रखा था। तो ये उसका क्लियर था, इसलिए 2 साल उसने कंटिन्यूस 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आना, 300 किलोमीटर अप डाउन किया उसने। अप डाउन करने के साथ साथ उसने पार्ट टाइम पे जब भी 2-3 घंटा रोज का मिलता था उसमें क्लासेस लगाए, संडे को पूरा दिन क्लासेस में जाता था। ये सब कुछ 2 साल के लिए उसने कंटिन्यूस चलाया, विद द टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, सब कुछ उसने किया, कुछ भी आजू बाजू की चीज आने नहीं दी, ऑटोमेटिक सब कुछ चलता गया। 2 साल कैसे बीत गए उसको पता नहीं चला, और क्लासेस में भी बहुत अच्छी इनकम आने लगी, बहुत अच्छे से वो 8-8, 10-10 हजार लोगों को, मतलब जो प्रोफेसर्स आते थे उनको दे रहा था, अपनी फैमिली में भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा था। 2 साल के बाद उसका एमटेक खत्म हुआ, रिजल्ट आने से पहले उसको जो पहले सैलरी थी उसकी डबल सैलरी उसको मिली, स्टार्टिंग सैलरी उसको डबल मिली, एज वेल एज वो उसका बाद में रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट आया 90% प्लस। जी हाँ दोस्तों, 2 साल की जर्नी, सिर्फ व्हाट एंड व्हाई उसका क्लियर था। वो व्हाट एंड व्हाई ने ऐसी आग लगाई कि उसको बाकी का कुछ भी नहीं दिखा। ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ प्लानिंग के साथ वो चला। 2 साल के बाद अच्छी जॉब मिली, प्रोफेसर बनना था, प्रोफेसर बन गया, सैलरी भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी 90% प्लस आए, सब कुछ अच्छे से हो गया। और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ व्हाट एंड व्हाई की वजह से। हाउ एंड व्हेन उसका क्लियर था, 2 साल में खत्म कर लिया, एक साल जॉब कर ली, जॉब के बाद फाइनेंशियली भी अच्छा हो गया, सब कुछ क्लियर था। और ये एग्जाम्पल और किसी का नहीं है, ये एग्जाम्पल है खुद मेरा है। जी हाँ दोस्तों, आई एम दैट पर्सन कि जिन्होंने ये सब सफर किया है, और मेरी ही खुद की स्टोरी को लेके मैंने ये फॉर्मूला बनाया है WWHW। तो ये फॉर्मूला अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया है तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक कर पाओगे। तो ये सब कुछ क्लियरली आपके सामने में हूं, मुझे किसी और का एग्जांपल नहीं लेना है। आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल में जाके 2011-12 सब कुछ रेडी है, और आज मैं बड़ौदा सिटी में रहता हूं। यही WWHW को फॉलो करते करते मेरा खुद का बड़ौदा में घर है, 4 साल में मैंने खुद के पैसों से लिया है, खुद की कार है, सब कुछ कर रहा हूं।
ये WWHW से 2 साल में मुझे बुक कंप्लीट करनी थी, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। इट मीन्स कि ये जो मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं ये काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला था WWHW। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद ही आपके पीछे आग लगेगी और वही आग आपको दौड़ाएगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला था WWHW। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत टिप्स के बारे में बात करेंगे कि मैनेज कैसे करना है अपने टाइम को। तो सबसे पहला टिप है वो है प्लान अ डे इन एडवांस। मतलब आप सबको टू डू लिस्ट अपना बनाना है। आपको क्या करना है पूरे दिन में, वो टू डू लिस्ट आप सुबह उठ के भी बना सकते हो या अगले दिन रात को भी बना सकते हो। अगर आपका टू डू लिस्ट क्लियर है ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर लिस्ट होने के बाद अगर डे शुरू करते हो ना, तो आपके 2 घंटे बच जाएंगे। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है और अपना दिन शुरू करते हो, तो 2 घंटा आप वैसे ही वेस्ट करोगे जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहली टिप यही है कि आपको टू डू लिस्ट बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक डायरी मिलती है 365 डेज की, 365 पेजेस होंगे उसके अंदर आगे पीछे। आप वो डायरी परचेस कर लो, 100 या 200 रुपीज की वो डायरी आएगी। हर एक दिन में आप लिख दो कि कल क्या करना है। अगर आपको ये पता है कि कल क्या करना है, ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आपको पता ही कि ये टाइम पे ये करना है, तो ऑटोमेटिक आप टाइम पे डाइवर्ट हो जाओगे तो और अलग अलग काम करने लगोगे। तो टू डू लिस्ट है तो समझ लो आपका दिन का 2 घंटा बच गया। तो सालाना आप 700 से ज्यादा घंटे बचा लोगे। उसमें आपको जो बनना है ना साइड में, वो आप बन सकते हो। तो फर्स्ट टिप, प्लान अ डे इन एडवांस। सेकेंड, स्टार्ट विद द टफेस्ट वर्क। जी हाँ दोस्तों, आपके पास टू डू लिस्ट रेडी है, उसमें से जो टफेस्ट वर्क है उससे पहले शुरू करना है। क्यों? क्योंकि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपने शुरू में सुबह सुबह में ही जो आपका सबसे कठिन काम था वो कंप्लीट कर दिया है, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि टफ काम आपका कंप्लीट है, तो आप रिलैक्स हो गए कि हाँ भाई, सबसे कठिन काम था वो तो खत्म हो गया, अब तो मुझे इजी इजी काम करने हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। सेकेंड है एफिशिएंसी, आप दुगुना गति से आप काम करोगे, तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। तो आज से एक आपको वादा करना है, जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, आज से सबको एक वादा करना है, वो है जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। सुबह एक महीने के लिए आप अटेम्प्ट करो, ये सब कठिन काम सुबह में आप कर लो, पूरा दिन आप कॉन्फिडेंट रहोगे। थर्ड जो चीज आपको करनी है, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें पता ही नहीं है, वो सब डिस्ट्रैक्शंस हमें यहाँ से रिमूव करने हैं। वो कौन कौन से है डिस्ट्रैक्शन? यानी मूवी देख रहे हो, अननेसेसरी फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आपने टाइम बिता दिया, आपको पता ही नहीं है, पास्ट की कोई बैड मेमोरीज हम आप ऐसे ऐसे सोचते बैठ जाते हो कभी भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लर्न टू से नो। ये हमें सीखना चाहिए, हम सबको, आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, सबको ये सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, लर्न टू से नो। हम कोई भी कुछ भी काम करता है हम हाँ बोल देते हैं। ओके, हमें आता ही नहीं कि हमें नो कैसे बोलना चाहिए। तो ऑलवेज लर्न वन थिंग, दैट इज ऑलवेज लर्न टू से नो। जब आपको लगता है कि ये काम आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको डाइवर्ट कर रहा है, तो उसको ना बोल दो। ये आपको आना चाहिए और यही आपका टाइम सेव करेगा। बहुत सारी बातें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सोशल मीडिया की बात करो तो आज हमारा सबसे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे जा रहा है। मेल करना, मेल पे रहना, या तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया पे हमारा ज्यादातर टाइम जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए या तो नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप कुछ काम करो, नोटिफिकेशन आया, आप वहां पे चले गए, 2-3 घंटा बीत गया, आपको पता ही नहीं चल रहा। और ये जो सेंटेंस यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। इफ योर नोटिफिकेशन नॉट ऑफ, देन डेफिनेटली योर मूड विल ऑफ एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि देखो दोस्तों, 1 घंटे का आप काम लेके बैठे हो, 15 मिनट के बाद एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आया, एक न्यूज आई, न्यूज में लिखा है कि सुशांत सिंह का केस डाइवर्ट हो गया है सीबीआई के बीच में, आपका इंटरेस्ट वहां पे जागा, आपने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन पढ़ते पढ़ते गए, वहां पे बहुत सारी ऐड है, आप एक ऐड देखा, उसमें से दूसरी ऐड पे चले गए, तीसरी ऐड पे चले गए, आपको पता ही नहीं है कितना टाइम चला गया। तो 1 घंटे में आप 1 घंटे का काम था, आपने 15 मिनट काम किया, 15 मिनट काम करने के बाद आप डाइवर्ट हो गए, दूसरा 1 घंटा वहां पे चला गया। अब 1 घंटे के बाद तो आपको कोई और काम करना था, बट उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिला। तो जब आपका टू डू लिस्ट रेडी था, आप रात को जाके देख रहे हो कि कौन कौन सा काम खत्म हुआ, तो आप देख रहे हो कि 50% से ज्यादा काम तो कंप्लीट हुआ ही नहीं।
आप ऑटोमेटिकली मूड आपका ऑफ हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन ऑफ करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, एक चीज और है कि सोशल मीडिया पे हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हम सर्फिंग करते हैं, बट द मेन चीज क्या है पता है कि हम सोशल मीडिया पे सर्फिंग नहीं कर रहे, हम सफरिंग कर रहे हैं। पीपल आर नॉट सर्फिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बट सबसे मेन चीज यही है कि हमें यही नहीं पता है कि हम सफर कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि 2 घंटा हम कहाँ पे दे रहे हैं, 3 घंटा हम कहाँ पे दे रहे हैं, कभी कभी 4-5 घंटे हम निकल जाते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, हमें पता ही नहीं है। यूट्यूब भी है एक, 4-5 घंटे निकल के पता ही नहीं है। तो हम एक सफर कर रहे हैं, हमें एक डिजीज हुआ है जो हमें पता ही नहीं है, और वो है सोशल मीडिया। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमें बंद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे जब आप काम करोगे। अब हर एक ऑब्स्टेकल्स के सामने आप लड़ने जाओगे, बहुत सारे लोग आपके काम के बीच में अड़चन बन के आएंगे, और सबको आप आंसर देते जाओगे ना, तो आप दोस्तों कहाँ पे भी नहीं पहुंचेंगे। So very good sentence written over here. While walking on road, so many dogs will bark at you. But if you stop every time to throw stone to them, you will never reach to your destination. अगर आपकी जर्नी के दौरान, आपके टाइम के दौरान अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है और आप सबको एंटरटेन कर रहे हो, तो मानिए दोस्तों आप कहाँ पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो इन सब लोगों को डिस्ट्रैक्शन जो भी है ना, उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्योर ब्रोकन फोकस सिंड्रोम। ये हमें पता ही नहीं है जो हमें क्योर करने की जरूरत है। अब ब्रोकन फोकस सिंड्रोम क्या है? मल्टीटास्किंग ले लो या इमीडिएट वर्क डाइवर्ट ले लो, दैट इज ब्रोकन फोकस सिंड्रोम है। तो ये कैसे होता है कि मैंने अभी आगे आपको बताया कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो और कोई काम करने में एकदम पॉपअप हो गया और पॉपअप पे आप लग गए, वहां पे सुशांत सिंह का कोई केस आया है, उसकी आप कोई न्यूज ले रहे हो, वहां पे किसी और जगह पे चले जाते हो, फिर किसी और जगह पे फिर कोई सुशांत का कोई ओल्ड वीडियो आ जाता है, वहां पे आप देखने चले जाते हो। गूगल से डायरेक्ट आप चले गए यूट्यूब के ऊपर और नीचे एंटरटेनिंग वीडियो आपको आते हैं, वो सब देख के जाते हो। तो इसको बोलेंगे हम इमीडिएट वर्क डाइवर्ट। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप काम करते हो आपको नेट ऑफ रखना है, या तो अगर नेट ऑन रखने की जरूरत है आपको तो उसका नोटिफिकेशन ऑन करो। दोस्तों ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप कभी भी अगर एक दिन भी मेरे साथ आप गुजारते हो ना, मेरा मोबाइल आपको कभी भी रिंगिंग पे नहीं दिखेगा, वाइब्रेशन पे रहेगा, और एक भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, मुझे पता ही नहीं होगा कि कौन सा मैसेज आ रहा है। जब मैं ऑन करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ये नोटिफिकेशन आई है। और जी हाँ दोस्तों, मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो सोशल मीडिया एडिक्टेड पर्सन। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने खुद से समझा कि मुझे रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैंने वही किया कि नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दी। आज कोई भी मैसेज नहीं आता है, जब कोई कॉल आता है तभी मुझे उठाना पड़ता है फोन। तो बेस्ट थिंग आप ये कर सकते हो कि नोटिफिकेशन ऑफ करो। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो 80-20 रूल, उसको हम बोलेंगे पैरेटो प्रिंसिपल। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम हमारी लाइफ में 20% जो रिलेटिव से उनसे 80% कनेक्टेड है। आप मानो या ना मानो, आप अपने जितने भी रिलेटिव है उनकी लिस्ट बनाओ और देखो आप कौन से रिलेटिव से उनसे ज्यादा कनेक्टेड हो। उसमें से सिर्फ 20% निकलेंगे जिससे आप ज्यादा कनेक्टेड हो। ओके, सेकेंड है आपके जितने भी फ्रेंड्स है ना, उसमें से 20% फ्रेंड्स ही ऐसे होंगे जिसके साथ आप 80% टाइम बिताते हो। आप ये कर लेना, करोगे तो पता चलेगा कि हाँ पैरेटो प्रिंसिपल सच है, वो कुछ गलत नहीं है। तो यही टाइम मैनेजमेंट हमें इसको ही फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? हमारे पास टू डू लिस्ट है, कौन कौन से काम करना है वो हमारे पास लिस्ट है। तो उसमें से 20% वर्क हमें ढूंढ के निकालना है जो हमें 80% आउटपुट दे। तो ऐसे कौन कौन से अगर 20% काम है, एक तो रीडिंग है, क्लासेस हमें अटेंड करना है, फिर होमवर्क करना है, फिर एक्सरसाइज करना है, फिर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। ये जो 20% वर्क है ना, जो आपको 80% आउटपुट देगा। बाकी का जो 80% काम है ना, उसको आपको फायदा सिर्फ 20% ही होगा। जो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम रहता है सब कुछ खत्म करने के बाद, उसके अंदर ये 80% जो बाकी का रहा काम, वो करने का ट्राई करो। तो फॉलो दिस 80-20 रूल्स, पैरेटो प्रिंसिपल हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज यूआई मैट्रिक्स। एक ये टूल है जहां से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो।
ये यूआई मैट्रिक्स जो अलग और भी नाम है द आइजनहोवर मैट्रिक्स, ये आइजनहोवर मैट्रिक्स आप यूज करके अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। इसको हम यूआई इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्सेस मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट है और वर्टिकल लाइन पे इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट है। 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। सबसे पहला क्वाड्रेंट है, उसमें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क आएगा। तो आपके पास टू डू लिस्ट रेडी है, तो उसमें से आप निकालो कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपका 1 हफ्ते के बाद एग्जाम है, तो अभी रीडिंग आपका अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है, तो यहाँ पे डाल दो। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आप अपने पेज पे बना लो और यहाँ पे आप डालो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि रीडिंग, ये आपका सबसे पहला अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है। ये करना तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, आपको करना ही है ये। तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले करना है। सेकेंड चीज है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है। नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, लेट्स से कि आपको टॉप करना है। टॉप आज तो नहीं कर देना है ना, टॉप आपको करना है 1 साल के बाद करना है, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट तो है। तो उसको क्या करना है, इसको शेड्यूल करना है कि आपका जो टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम में आप क्या करोगे हर दिन। कि मतलब 8 बजे अगर मेरा सब कुछ काम खत्म हो जाए, तो 8 से 9 बजे में एक्स्ट्रा रीडिंग करूंगा या एक्स्ट्रा काम करूंगा, खुद की नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी, ये सब आपको करना है। ओके, तो नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ओके, ये सेकंड पे आपका आना चाहिए। थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसको हम बोलेंगे अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि लेट्स से मान लो कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया। अब घर पे वो गेस्ट आए हैं, आपको पता है कि गेस्ट आए हैं और आपको ये मम्मी से ये पता चला कि घर में दूध नहीं है, मिल्क नहीं है। या एक सेकेंड, समवन रेज am I audible to all? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. okay, because so many students are raising hand, that is why I stop over here. So I am audible na clearly? Yes, Yes, sir. sir. You are audible. Okay. So third quadrant है, that is कि आपके घर पे कोई आया है, रिलेटिव्स आए हैं या कोई भी आया है, आपको पता है मम्मी ने बताया कि दूध नहीं है। अगर उसी टाइम पे आप कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट या नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो, आपको पता है कि आपके घर पे कोई छोटा सा भाई है या बहन है या कोई और है जो खाली बैठा है, तो आप अपना काम उनको ट्रांसफर कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मम्मी से कि मैं अपना ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बेटर कि ये काम ये आप जो मेरा छोटा भाई है छोटी बहन है उनको दे दो तो अच्छा होगा, ताकि वो भी काम हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो जो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप डेलीगेट कर सकते हो या किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। देखो, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, सब काम हमें खुद से नहीं करना होगा। अगर ये करने लगे तो टाइम मैनेजमेंट कभी होगा ही नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा काम आप खुद कर सकते हो, कौन सा काम आप डेलीगेट कर सकते हो। तो आपके टू डू लिस्ट में से ऐसे ऐसे भी बहुत सारे काम आएंगे जो आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा तो भी चलेगा, तो उसको ये थर्ड क्वाड्रेंट में डाल दो। और फोर्थ क्वाड्रेंट है जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। दोस्त ने बोला चल मूवी देखने जाते हैं, ये अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको बोलो डिलीट करो इसको। उसको बोलो ठीक है आज नहीं, संडे पे कभी टाइम होगा तब हम जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो उससे कुछ अवार्ड नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे गए तो शाहरुख खान या सुशांत सिंह कोई आके आपको अवार्ड दे देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। या तो फिल्म इंडस्ट्री से आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, आईफा अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट वर्क इज नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। उसको बोलो अपने दोस्त को हम जाएंगे संडे को, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा रात को 9 से 12 के शो में जाएंगे, उसको आज के लिए डिलीट कर दो या तो एलिमिनेट कर लो। तो ये मैट्रिक्स है, इसको हम बोलेंगे यूआई मैट्रिक्स, जो हम सब फॉलो कर सकते हैं। ये तभी फॉलो होगा जब आपका टू डू लिस्ट रेडी है। टू डू लिस्ट रेडी है तो आप ये मैट्रिक्स इजीली बना सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्किप एनी टास्क। अगर आप कोई टास्क से डाइवर्ट हो गए हो, यहाँ पे आपका 15-20 मिनट या तो आधा घंटा चला गया है और आपको उसके बाद कोई और काम करना था और वो काम करने का टाइम आ गया है और आप पहले वाला काम क्लियर नहीं कर पाए हो, तो प्लीज उसको हमें स्किप नहीं करना है। किसी भी सूरत में हमें वो काम कंप्लीट करना है। सी दोस्तों, हम हमारी कैपेबिलिटी को जानते नहीं है। एक बात याद रखो, चाहे वक्त हो कम बट हम में है दम। ये चीज माइंड में फिट कर दो, कुछ भी हो जाए हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम कोई भी टास्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया है तो एटलीस्ट ट्राई करो कि 15 मिनट जो बचा है उसमें आप काम एटलीस्ट कंप्लीट कर सकते हो।
कभी भी कोई भी काम को लीव मत करो। अगर आज एक काम को आपने लीव कर दिया ना, तो वो एक आदत धीरे धीरे बिल्टअप हो जाएगी जो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक चीज याद रखो, डू लिस्ट बट एटलीस्ट डू। थोड़ा करो बट करो। आज आपने थोड़ा काम किया है, आपको रात को पता चला कि ये 15%, 20%, 25% कंप्लीट हुआ है, आपको ये जरूरी था, आपको रात को एक गिल्टी फील होगी, एक मोटिवेशन भी अंदर से मिलेगा कि कल तो मैं इसको कंप्लीट करके ही रहूंगा। तो नेक्स्ट डे जब आप उठोगे ना, तो एक फुल मोटिवेशन के साथ उठोगे और वो काम कंप्लीट करोगे। बट अगर आपने वो काम किया ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं किया है, उसको लीव कर दिया है, तो आज भी वो टेंडेंसी आपकी हो जाएगी, या तो ऑटोमेटिक बिल्टअप हो जाएगा कि चलो कल भी नहीं किया तो आज भी नहीं करेगा, चलेगा। चलते 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 यही एक हैबिट आपकी बिल्टअप हो जाएगी कि जो आपको टास्क करना है, जो आपको काम करना है, उसको आप डिले करते जाओगे और अपना वक्त बर्बाद करते जाओगे। तो जब भी आपको कोई टास्क मिले, एटलीस्ट कंप्लीट, थोड़ा तो थोड़ा उसको कंप्लीट करो और नेक्स्ट डे उसको पूरा कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, दैट इज सेट रिमाइंडर्स। अगर आपको भूलने की आदत है, आपको याद नहीं रहता है कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, तो आपका मोबाइल यहाँ पे काम आएगा। मोबाइल के अंदर रिमाइंडर रख दो। जैसे सुबह उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं, ऐसे रिमाइंडर मोबाइल में रख सकते हो आप, कि एक एक घंटे के अंदर आपको रिमाइंडर मिल जाए। उसमें रिमाइंडर में लिख दो कि टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, सी टू डू लिस्ट, सी टू डू लिस्ट। तो एक एक घंटे के बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा, आप स्क्रीन पे देखोगे तो पता चलेगा हाँ टू डू लिस्ट को देखना है। आप डाइवर्ट हो जाओगे टू डू लिस्ट पे, आपको पता चले इतने काम खत्म हुए, इतने नहीं हुए। तो हर एक घंटे में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक अगर एक एक रिमाइंडर आपको एक एक घंटे में मिल जाता है, ऑटोमेटिकली आपका टाइम यहाँ पे मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ये 7 पॉइंट है। 8वां पॉइंट है ना, कोई हमें सिखाता नहीं, कोई हमें बोलता नहीं है, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक अ स्टॉप डूइंग लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे ये बनाते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम हमें जल्दी करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब ब्ला 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 सब हम बनाते हैं। बट हम ये ही नहीं बनाते हैं कि स्टॉप डूइंग वर्क कौन सा है, कि जो काम हमें करना ही नहीं है वो काम कौन से है। तो आप यहाँ पे बैठे हो, काम कर रहे हो, फिर सोशल मीडिया पे चले गए। क्या सोशल मीडिया पे कोई अवार्ड मिलने वाला है क्या? किसी को नहीं मिलने वाला है। तो स्टॉप डूइंग लिस्ट में आना चाहिए कि मेरे काम करते टाइम पे सोशल मीडिया नहीं आना चाहिए। मेरे काम करते टाइम पे कोई भी फ्रेंड्स का फोन आया तो मुझे नहीं उठाना है। मेरे काम करते टाइम पे कहाँ पे कोई चाय पे बुला रहा है तो मुझे नहीं जाना है। तो ये स्टॉप डूइंग लिस्ट हमें बनाना है। स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाओगे, हर दिन देखोगे तो आपको धीरे 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 आदत हो जाएगी, माइंड में फिट हो जाएगा कि ये काम नहीं करना है। आप फिर देख लो 15-20 दिन, ये ट्राई करके देख लो, 15 दिन के 20 दिन के बाद आप कोई काम कर रहे हो, डाइवर्ट होके सोशल मीडिया पे चले गया तो कुछ भी हुआ, आपको माइंड में फिट है कि भाई ये नहीं करना है, पीछे से घंटी बजेगी कि या भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। माइंड खुद आपको सिग्नल देगा और आप ऑटोमेटिक वो काम नहीं करोगे। सी दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल चीज है, आपको करनी पड़ेगी। ये माइंड पावर का काम है, धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। बट वो अगर आप धीरे धीरे करते हो ना तो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप रात को देखोगे ना कितने काम करने थे हो गए, तो आपने जो भी मैंने फॉर्मूला बताया है, अगर आपने सबके सब फॉर्मूला अप्लाई किए हैं तो ऑटोमेटिक आप सबके सब पॉइंट पे ऊपर राइट 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 क्लिक कर दोगे। ये मेरी गारंटी है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आप पॉइंट्स सब कुछ अप्लाई करते हो तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाना है। जो काम हमें नहीं करना है ना, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, हमें कभी कभी देख लेना, पूरे दिन की जो आप लिस्ट बनाते हो ना, नॉर्मली अभी टाइम मैनेजमेंट के बिना आप जो काम करते हो ना, उसमें आप लिस्ट बनाओ, उसमें आप देख लो कि कौन कौन से काम है जो आपके काम के नहीं थे फिर भी आपने कर डाले। तो जो आपके काम के नहीं थे फिर भी आपने किए, उसको डाल दो स्टॉप डूइंग में। तो नेक्स्ट डे आप जब भी देखो कि ये काम आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए स्टॉप डूइंग में है, आपको इसको एलिमिनेट करना है या तो डिलीट करना है, फिर से अपने काम पे लग जाओ। तो ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब चीजें थी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो हम अलग अलग तरीके से कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है, टूल्स बताए, टेक्निक्स बताए, टिप्स बताए, एग्जाम्पल्स आपको शेयर किया, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी के बारे में। तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले सेट होनी चाहिए। फैमिली है, फिर स्टडी है, होमवर्क है, रीडिंग करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, पर्सनल डेवलपमेंट करना है, एक्शन आपको करना है टुवर्ड्स योर गोल्स। ये सब आपकी प्रायोरिटीज है।
पर आपको ये प्रायोरिटीज मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फैमिली नहीं लिखा है बिकॉज ये बट ऑब्वियस है, फैमिली तो आती ही है हमारी प्रायोरिटीज में। ओके, तो बाकी एज अ स्टूडेंट हमें क्या प्रायोरिटी लेनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टडी, होमवर्क, पर्सनल डेवलपमेंट, एक्शन टुवर्ड्स गोल, रीडिंग। तो ये आपकी प्रायोरिटीज है। अब हमारे पास टू डू लिस्ट है, उसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रायोरिटी में बेस्ट सूट होती है, या तो कौन सी प्रायोरिटी ऐसी है, कौन सा काम ऐसा है जिसको हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसके लिए भी एक टूल है, तो वो टूल को हम बोलेंगे एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स। यहाँ दोस्तों, आपके पास बहुत सारे काम है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा काम जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना चाहिए। अगर आप उसमें कंफ्यूज हो, तो आप जो अभी मैं आपके सामने टूल दिखा रहा हूं, वो टूल को आप यूज कर सकते हो, और वही टूल यूज करके आप अपनी प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। ओके, इट्स वेरी इजी टूल। इसको हम एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम और भी बोल सकते हैं इम्पैक्ट वर्सेस एफर्ट ग्राफ। इम्पैक्ट वर्सेस एफर्ट ग्राफ। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप देखोगे एफर्ट है, लो एफर्ट टू हाई एफर्ट। वर्टिकल लाइन पे इम्पैक्ट है, लो इम्पैक्ट टू हाई इम्पैक्ट। ओके, 4 क्वाड्रेंट है अलग अलग, जैसे यूआई मैट्रिक्स था वैसे ये ईआई मैट्रिक्स है। तो ईआई मैट्रिक्स भी आप यूज कर सकते हो। इसको बोलेंगे एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स, जहां से आप प्रायोरिटी वाला काम कौन सा है यहां से आप डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्विक विंस, सेकंड है मेजर प्रोजेक्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में फिल इन्स, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थैंकलेस वर्क। एक एक चीज हम समझते हैं कि कैसे प्रायोरिटी सेट होगी, और मैं आपको रियल एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे आप प्रायोरिटी एक एक काम का सेट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट है क्विक विंस। क्विक विंस माने कि ऐसा काम कि जिसकी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट भी ज्यादा होगी और एफर्ट कम होगा। तो आपके पास टू डू लिस्ट है, उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है। वो कैसे निकालना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा विथ एग्जांपल। कि क्विक विंस मतलब हाई इम्पैक्ट, ऐसा कौन सा काम कि जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, कि जो बहुत कम एफर्ट से आप कर सकते हो, तो उसको क्विक विंस हम बोलेंगे, जिसको सबसे पहले करना है। सेकंड, मेजर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट मतलब क्या, कि जिसकी इम्पैक्ट भी हाई है, एफर्ट भी आपकी हाई लगेगी। ऐसा काम कि जिसको करने के बाद आपकी लाइफ में या तो आपके डेली रूटीन में इम्पैक्ट भी ज्यादा आने वाली है, और एफर्ट भी आपका ज्यादा उसमें लगेगा, उसको सेकंड में रखना है। दैट विल बी योर सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड है फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब कि आप इसको बाद में कर सकते हो, या तो आप अपने फ्री टाइम में इसको आप कर सकते हो। तो जो ऐसा काम हो कि जो आपकी लाइफ में ज्यादा मैटर नहीं करता है, जिसकी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत कम है, बट उसमें एफर्ट भी आपकी कम जा रही है, वो काम को आप जब फ्री रहते हो, जब आपका फ्री टाइम है, जब सब खत्म हो गया है, तब आप ये काम करो। इसको हम बोलेंगे फीलिंग्स। एंड द फोर्थ वन है दैट इज थैंकलेस टास्क। थैंकलेस टास्क मतलब यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है, जिसका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट भी कम है, बट जहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्क, इन टर्म्स ऑफ टाइम। वो कुछ भी हो सकता है एफर्ट, ऐसा नहीं है एफर्ट मतलब हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा या तो फिजिकली हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। वो आपका ज्यादा टाइम भी ले सकता है। ऐसा भी कोई काम है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम लेता है बट उसका इम्पैक्ट बहुत लो है, इसको हम बोलेंगे थैंकलेस टास्क, जिसको हमें एलिमिनेट करना है। अभी हम ये समझेंगे कि ये हमें कैसे मैनेज करना है, कि कौन सा क्विक विंस में जाएगा, मेजर प्रोजेक्ट में जाएगा, फिलिंग्स में जाएगा, थैंकलेस टास्क में जाएगा। ओके, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। आप ये वर्कशीट देख रहे हो, 3 कॉलम है। ये 3 कॉलम बना के आप एक वर्कशीट ऐसा बना सकते हो आप अपने एक पेज में। इसको हम बोलेंगे एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स वर्कशीट, जिसके फर्स्ट कॉलम में हमें एक्टिविटीज लिखना है, अलग अलग जो हमारी डेली एक्टिविटीज है उसको हमें लिखना है। सेकेंड कॉलम में आपका आएगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को आपको रेटिंग करना है 0 to 10 के अंदर। तो जो काम आपकी लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट करता है उसको आप 0 दे दो, ज्यादा इम्पैक्ट करता है उसको 10 दे दो या तो 9 दे दो, और कम इम्पैक्ट करता है इसको 0 दे दो। एफर्ट कितना लगेगा वो भी आपको यहाँ पे लगाना है, बताना है कि 0 to 10 के बीच में आपको रेटिंग देना है। तो 3 कॉलम है, एक्टिविटी, इम्पैक्ट एंड एफर्ट। अभी आपके पास टू डू लिस्ट है। सी दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा
बट एक बार आपने ये क्लियर कर लिया ना, तो आप बहुत रेडी हो जाओगे अपना काम करने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। बट हाँ, शुरू-शुरू के दिनों में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आप सब काम ऑटोमेटिक करने लगोगे। सुबह 5 बजे भी उठना है ना, तो 5 बजे भी उठ जाओगे, 4 बजे उठना है तो 4 बजे भी उठ जाओगे। क्योंकि मेरा जब मैंने अपनी लाइफ आपको आपके सामने मैंने शेयर की है, आपको पता है, मेरा ऐसा माइंड सेट हो गया था ना कि पहले-पहले तो मुझे 4 बजे उठना था, बहुत दिक्कत आती थी, सर्दी में उठना बहुत स्ट्रगल वाला केस था। बट थोड़े टाइम के बाद, 1 महीने के बाद मैं हैबिचुअल हो गया और मेरी लाइफ में ये 2 साल के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं 3:55 को उठ गया हूँ। मेरा मेरा अलार्म 4 बजे को बजता था, बट मैं 3:55 को उठ गया हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन हो गया था। कभी-कभी संडे को भी 3:55 या तो 4 बजे मैं उठ जाता था। बट नॉर्मल था ये। संडे को अलार्म मेरा बजता नहीं था, बट ये जो क्या है ना, ये डेली शेड्यूल हो गया था ना, वो शेड्यूल मेरी बॉडी, मेरा माइंड ऑटोमेटिक फॉलो कर रहा था। तो शुरू-शुरू के टाइम पे आपको ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने 1 महीना, 2 महीना ये कर लिया, उसके बाद ये कोई भी मैट्रिक्स या वर्कशीट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका माइंड, आपका बॉडी सेट हो जाएगा और आप टाइम मैनेज कर पाओगे और ऑटोमेटिक वो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पे थोड़े बहुत अलग-अलग टास्क दिए हैं, जो एज़ अ स्टूडेंट आप शायद करते होंगे। तो सबसे पहला टास्क है रीडिंग बुक। आपको पता है 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, 1 हफ्ते के बाद एग्ज़ाम या तो कल एग्ज़ाम है। तो रीडिंग बुक, तो इम्पैक्ट कितना है? आप रीड कर रहे हो मतलब आपको कुछ ना कुछ नया समझ में तो आने वाला है। वो सब्जेक्टिव हो या नॉन सब्जेक्टिव हो या कुछ मोटिवेशन रीड कर रहे हो, नॉन मोटिवेशन या तो अपना टेक्निकली या तो अपनी जो किताब है डेली की, वो आप पढ़ रहे हो। तो उससे पढ़ने के बाद 30-40 मिनट या तो 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ने के बाद आपके ऊपर इम्पैक्ट तो आने ही वाला है। आपकी लाइफ में इम्पैक्ट तो आने ही वाला है। इम्पैक्ट कैसे आएगा? आप आज पढ़ाई करोगे 1-2 घंटा, तो उसका रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। तो इम्पैक्ट तो आने वाला है, तो हाई इम्पैक्ट टास्क है ये, तो इसको रेटिंग दो 9 या तो 10 भी दे सकते हो आप उसको। इसके लिए एफर्ट कितना? आप 1 घंटा दे रहे हो अपनी लाइफ का, 2 घंटा दिन का दे रहे हो, तो एफर्ट इसके लिए बहुत कम है। आपको शांति से बैठना है, मतलब फिजिकली एफर्ट नहीं है। यस, टाइम आपका जा रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है, फ्री हम इसको एफर्ट में दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो भाई एक्सरसाइज। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है। 1 हफ्ते के बाद आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो होना चाहिए, बट हिट और फिट भी तो होना चाहिए ना। और एग्जाम के टाइम पे ही हमें बुखार आ गया, तो फिर कौन एग्जाम देने जाएगा? तो मतलब एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में हर रोज एक्सरसाइज आप करोगे तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत हाई आने वाला है। तो इम्पैक्ट का मैंने 9 पॉइंट दे दिया। अब इसकी एफर्ट देखो, टाइम भी जाएगा और फिजिकली एफर्ट भी ज्यादा है। एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकली एफर्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने एफर्ट में रेटिंग दिया है 8। थर्ड पॉइंट है ग्रुप चैट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हो या तो पर्सनल चैट कर रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ पे भी आपको किसी को कमेंट कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कहाँ पे भी चैट कर रहे हो या किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, फिजिकली कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप चैट कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट कितना है? मान लो कि आप किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, विश कर रहे हो, बात कर रहे हो, अच्छी बात है। महीने के बाद आप बात कर रहे हो, अच्छी बात है। इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो एट द टाइम आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तो हम इम्पैक्ट उसको 3 रखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कुछ इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो इट जस्ट लाइक अ टाइम वेस्ट। अगर आप ज्यादा टाइम बिताते हो, 5-10 मिनट बिताओ, दैट्स फाइन, इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। बट अब अगर हम लॉन्ग लॉन्ग ग्रुप चैट करते हैं, तो दैट इज टाइम वेस्टिंग। तो उसको हम इम्पैक्ट देंगे 3। इसका हम एफर्ट भी देखेंगे, तो ज्यादा एफर्ट नहीं है। हम 1 घंटा 2 घंटा देते हैं, तो ज्यादा एफर्ट भी नहीं है। इजीली हमारे मोबाइल लेके हम कर रहे हैं सब कुछ, तो आधा घंटा या 1 घंटा या तो 1.5 घंटा हम दे रहे हैं, तो एफर्ट हम उसको यहाँ पे देंगे 4। लास्ट पॉइंट है एक मूवी। ओके, आपका कोई दोस्त आया, मूवी के लिए बोल रहा है। ओके, आप मान लो कि मूवी देखने नहीं जाते, पर अगर आप जा रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट कितना? आप मूवी देख के आ गए, तो क्या कुछ इम्पैक्ट मिलेगा आपकी लाइफ में? क्या कुछ उससे आपको अचीव होने वाला है? बिल्कुल नहीं। मूवी आज नहीं, कल देख लो। कभी कभी मोबाइल में फ्री हुए हो, आधा आधा मूवी करके देख लो। हमने बहुत बार किया है, बहुत बार ट्रैवलिंग करते करते हमने मूवी देखा है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मूवी थिएटर में जाके ही देखना है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास नहीं है। जब हम फ्री टाइम में रहते हैं, जब हमारे पास कुछ काम करने का नहीं रहता है, तब हम ये कर सकते हैं। तो इसको हम इम्पैक्ट देंगे 2, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, टेम्पररी प्लेजर हमें मिलेगा, बट इतना ज्यादा नहीं है। इम्पैक्ट 2,
पर अगर हम कंटिन्यूस एक मूवी देख रहे हैं, मतलब हमारा 2 to 3 आवर्स उसको हम दे रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं तो 4 घंटा हमारा हम दे रहे हैं, तो 4 घंटा इट मीन्स एफर्ट रिस्पेक्टिवली टाइम, इसको हम टाइम से कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपका 4 घंटा जा रहा है, तो यहाँ पे एफर्ट बहुत ज्यादा है आपकी, इसलिए मैंने यहाँ पे एफर्ट इसका ज्यादा दिया है। ये सब आपको प्लॉट करना है एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स पे। तो आप कैसे प्लॉट करोगे? तो देखो, सबसे पहला टास्क है जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, एफर्ट कम है, तो वो कौन सा टास्क था? रीडिंग बुक। तो रीडिंग बुक मतलब ये क्विक विंस में आ जाएगा, जिसको आपको सबसे पहले उठ के करना ही है। आप प्लान बनाओ 6 बजे उठने का, 6 से 8 आपको ये रीडिंग करना ही है, तो करना ही है, कैसे भी हो जाए। ये आपका क्विक विंस हो गया। सेकेंड, मेजर प्रोजेक्ट कौन सा है कि जहां पे आपका एफर्ट इम्पैक्ट हाई हो, एफर्ट भी हाई हो, ऐसा कौन सा काम था जहां पे हमने ये देखा, ऐसा एक्सरसाइज था, तो सेकंड जो काम करना है वो आपका एक्सरसाइज होगा। थर्ड काम कौन सा है? तो ग्रुप चैट। सब काम खत्म करने का बाद, सी मैंने एक एक एग्जांपल दिया है, आपके पास अगर 20 अलग अलग काम का लिस्ट है तो यहाँ पे एक से ज्यादा काम आपके आ सकते हैं। जैसे रीडिंग बुक है तो उसके बाद कोई और भी आ सकता है, जहां पे आपको सबसे पहले वो काम खत्म करना है, उसके बाद सेकेंड वाला खत्म करना है। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपको। तो ये सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड जो है आपका वो है फीलिंग्स, ग्रुप चैट, तो उसको आप डिले करो या तो मत करो। लो इम्पैक्ट लो एफर्ट, इसको आप डिले कर दो, या तो जब फ्री बैठे हो तब आप करो। और फोर्थ टास्क है थैंकलेस, जहां पे आपको कुछ भी खुद से मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है, उसका लो इम्पैक्ट है बट एफर्ट बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्क, उसको आपको एलिमिनेट करना है। ओके, तो ऐसे एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स आपका अगर रेडी है, ये वर्कशीट रेडी है, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है आपको समझ में आ जाएगी। एक दो बार करके देखो, अगर आपको ये सूट हो जाता है तो धीरे धीरे एक एक हफ्ते का आप प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाओ। प्रायोरिटी मैट्रिक्स में एक एक हफ्ते का पूरा बना लो। सुबह उठ के सिर्फ आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी में कौन सा काम आता है। आपका डेली बेसिस पे भी आप बना सकते हो, यूआई मैट्रिक्स भी डेली बेसिस पे बना सकते हो, WWHW भी आप बना सकते हो, एक्सएम प्रायोरिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हो। बट द मेन थिंग, टाइम यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना है, तो ये देना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये सेशन का कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए कुछ मैंने यहाँ पे कुछ मोटिवेशन नहीं डाला है कि जहाँ पे मैं आपको 2-4 वीडियो बता दूं, 2-4 अच्छी बात कर लूं। मैंने कुछ अच्छी बात यहाँ पे नहीं की है, जो रियलिस्टिक है मुझे वही बताना था, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये फॉलो करो, आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके और आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो एटलीस्ट वो अचीव कर लो। क्योंकि हमें नहीं पता है हम क्या क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो ये सब चीजें हैं, ये सब पॉइंट्स है, ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स है, जहां पे आप कुछ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके या तो अपनी लाइफ में यूज करके इसको आप टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स बताए हैं, इसमें से कोई भी आप उठा लो, यूज करो, डेफिनेटली आपका जो पहले था और अभी जो आप होगे उसमें बहुत सारा चेंजेस दिखेगा आपको। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा हमारी लाइफ के फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो अलग अलग फैक्ट्स है हमारे पास, सिर्फ 24 आवर्स है, बट हमें पता नहीं कि 24 आवर्स में हम क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा 24 आवर्स हम कैसे यूज करते हैं। 24 आवर्स में से हम 8 घंटा सोने में निकाल देते हैं, तो मतलब 1/3 टाइम हमारे यहाँ पे गया। अगर आप स्टूडेंट हो या तो प्रोफेशनल हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 8 घंटा आपका स्टडी में चला गया। 8 दूना 16, 2/3 टाइम यहाँ पे दोनों में चला गया। अब रहा 1/3 टाइम। 1/3 टाइम क्या है? 3 आवर्स आपका रूटीन वर्क। रूटीन वर्क मतलब कुछ भी हो जाए, आपका खाने का, पीने का, कुछ भी हुआ, ये रूटीन वर्क में आ गया आपका। ओके, सुबह उठ के आप जो डेली रूटीन फॉलो करते हो उसके लिए जितना एवरेज 3 आवर्स हमें लगता है रूटीन वर्क के लिए, 2 आवर्स हम नॉर्मली ये एक रिसर्च है, रिसर्च से यहाँ पे दिया गया है 2.11 आवर्स, मतलब 2 घंटा 11 मिनट हम सोशल मीडिया पे हम बिताते हैं ऑन एन एवरेज। अगर आज हमने 1 घंटा बिताया है तो नेक्स्ट डे कुछ भी करके हम 3 घंटा बिताएंगे, वो हमें पता नहीं है। बट सोशल टाइम मतलब कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो या तो सोशली आप किसी से कनेक्टेड हो, वहां पे अपना टाइम दे रहे हो, तो 2 आवर्स हम डेली एवरेज हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना घंटा हुआ? 8 2 16 19 21, रहा कितना? 3 घंटा। ये 3 घंटे को हम बोलेंगे
माई टाइम। यस दोस्तों, इसको हम बोलेंगे माई टाइम। आपको ये माई टाइम को मैनेज करना है, और आपको ये माई टाइम को ऐसे मैनेज करना है जिससे आप अपनी लाइफ के जो भी गोल्स हो उसको अचीव कर सको। ये माई टाइम को ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे अलग अलग काम के अंदर डिवाइड करना है, आप जहां पे भी जाना चाहते हो ना, आप वहां पे एग्जैक्टली जा सको। तो ये माई टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करो, और 5 साल तक अगर आपने ये माई टाइम आपने यूटिलाइज अच्छे से कर लिया ना, तो यू विल बी इन 5% पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आप ऑटोमेटिक 5% जो वर्ल्ड के टॉप 5% है ना, उसमें आप आ जाओगे, बट टाइम लगेगा। ये माई टाइम में भी डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, तो ये 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल भी हो सकता है, बट एटलीस्ट धीरे धीरे ये माई टाइम शुरू करोगे यूज करना, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। सो दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट। तो ऐसे आप करके अपना टाइम, अपनी प्रायोरिटी, अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। जैसे ये सेशन था टाइम मैनेजमेंट का 3:30 टू 4:30, दोस्तों 4:30 हो गया है। आई एम हैंडिंग ओवर माइक टू द चैताली मैडम एंड स्नेहल मैडम। So thank you all of you for this wonderful opportunity. Ma'am, I am handing over mic to you. अगर Okay. किसी भी को स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो you may ask. My session is over here. And Okay. last but not the least, I am again thanking Parul University एंड JCI अंकलेश्वर फैमिली के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज अ स्पीकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस वाज द वंडरफुल सेशन फ्रॉम माय साइड आल्सो, आई होप फ्रॉम योर साइड आल्सो। ओके, इफ यू वांट टू कनेक्ट मी, सैनिंग इंडिया विजय परमार आप गूगल में लिखो, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज पे भी। थैंक यू मैडम, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। या Thank you very much, sir. You have given very accurate guideline about the management of the time, and I hope this guideline will be very helpful for every viewer, and they will follow this and they will use it for better utilization of their time. So thank you very much, Vijay. Thank you very much, Vijay sir, and I want you, to madam. thank Snehal also. Although the Snehal is student of this college, but she has supported Yes, very yes, well, yes. and she has communicated very Exactly. well. So thank you very much. Yes. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, Chaitali madam. Thank you, Vijay sir. Thank you, Parul Institute. If anyone have doubt, then we will stop over here, or should I leave from here? Yes, sir. Now we all are late. Okay, no issue. Thank you, madam. Once again. Okay.